Common picture diagram where you have a pulley and is suspended from some fixed support. So AB is that strain, and then you have some masses, and these are very standard equations. So you have the same tension on the both sides. And in these type of questions, it's always written the pulley is frictionless and light. I want to know why. If it is not frictionless, what will happen? If it is not light, what happens? Both the things are there. Friction is not. Friction is there and weight is there. So different combinations. Okay, and I'm particularly interested in knowing. Let it be frictionless. Why light? Please respond. Why everywhere in the books? In the chapter of Newton's laws of motion, it is written, before going to moment of inertia and all those things, simple in the beginning, initial chapters, it's written frictionless and light. If it is friction, what will happen? What will be wrong? What will be wrong with these equations? If there is a friction in the pulley, what will be, will the equations work, or there is some problem? Why they mention that it is frictionless? Yes, sir. Yes, sir, please. So the weight term will change effectively, M1G. M1G is the mass of the object. But that mass of the string or whatever it is to be added there. No. Okay, let's say everything is fine. Mass of the string, I'm talking of frictionless pulley. Okay. So if there is a friction in the pulley, the mass is, let's say, mass of the string is okay, fine, light, good. And it's reasonable also. It's reasonable also because string is a thin object, light object. So if you say that we neglect the mass, it's fine. Pulley, can you have a very light pulley? Rajesh has to devise materials from which a pulley can be made, whose mass can be neglected. So let's look at these standard equations. If there is a friction in the pulley, what will change here, or it will still work? So what will be wrong with these two? How this will not work? Why this should not work? The equations. Huh? Why? That you have to calculate from these equations. If acceleration has to change, these equations have to change. कहाँ पे बदलेगा? क्या बदलेगा इसमें? वो तो यहाँ से निकलेगा. तो फ्रिक्शनलेस होने का क्या जरूरत है? अगर फ्रिक्शन होगा तो इसमें क्या घपला होने वाला है? होने वाला है सर, होने वाला है. Huh? The tension will not be the same. In these equations, we have written the same T here and the same T here. If there is a friction, then this tension will not be same, and you can do a very good demonstration. In fact, I did not bring my bottle. You can just have a string going over some rod or something, or your hand or a pen or pencil. One side you put two bottles on the both sides. In one side you put some water also in it, little amount. So the masses are unequal. Still it rests. It is in equilibrium. So the two tensions are different. Since it is equilibrium, this is M1G, that is M2G, they are different. So if there is friction, this equation will not work. But now, suppose there is no friction, so the tension is same. But the pulley is heavy. Pulley is heavy. How these equations are going to be affected? There is no friction, so TT is same. M1, M2, you can't do anything. And then the equation will give you A. So what is wrong? On these 2 points, A and B, I think. But we are writing equations. We are writing equations for this M1 and this M2. So this will not affect. This will not affect, right? So
So please find out in the textbooks why they write frictionless and light pulley. So this is one first puzzle. Now, okay, next puzzle. Okay, fine. What is the tension in AB? Tell me. M1 here, M2 here, going up, going down, frictionless pulley. And light also, if you so wish, although it is greater than 10. What is the tension in this AB? So 2T on this pulley. Okay, you say that this string is pulling the pulley down with a force T, and this string is pulling the pulley down with a force T, and that is why the total downward force on the pulley is 2T. Is it the logic? Is it the logic you are using? आइए बोलिए 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 भैया, कोई बात नहीं है. हाँ, मजा आएगा. थोड़ा खाओ, थोड़ा फेंको, मजा आएगा. आप क्यों कहते हो कि इस पे ऊपर वाले AB में टेंशन 2T होना चाहिए? क्योंकि आप 2T से नीचे खींच रहे हो पुली को, तो TT ऊपर होना चाहिए. और 2T से नीचे क्यों खींच रहे हो, उसके लिए क्या बोलोगे? उसके लिए क्या बोलोगे? ये वाली रस्सी जो है T से नीचे खींच रही है, ये वाली रस्सी T से नीचे खींच रही है. इसके अलावा भी कुछ बोलना है क्या? अभी तो सवाल आया ही नहीं है मेरा. Apprehension? Mass of the pulley. Pardon? Mass of the pulley plus T should be the upper force. हाँ, मतलब वो लाइट पुली है ना, लिखा हुआ है लाइट पुली. प्रकाश निर्मित पुली है ये, लाइट पुली. प्रकाश में वेट तो होता नहीं है. फोटॉन्स आर मासलेस, so my pulley is also massless. प्रकाश निर्मित पुली है. हाँ, बताइए. अभी तो सवाल आया ही नहीं है. अच्छा, आप बार बार लिखते हो कि नहीं? बार बार लिखते हो कि नहीं? वो ऊपर वाला रस्सी में 2T आएगा, तो कभी सोचा नहीं क्या कि 2T क्यों लिखते हैं? हाँ, बताओ. उतना ज्यादा ही मतलब टेंशन होगा. तो एक M1G इधर लग रहा है, M2G इधर लग रहा है, और अपन लाइट इसलिए ले रहे हैं. अगर वो लाइट नहीं होता तो फिर उसका भी टेंशन आ जाता. थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए शायद ये किया था. हाँ बिल्कुल ठीक है. पहले ही मैंने कहा था ये बात. वो M1G तो नहीं होगा, M2G तो नहीं होगा, वो एक्सेलरेशन में भी होंगे. बट व्हाटएवर टी, जो टेंशन यहाँ है, क्या ये रस्सी इस पुली को इसी बल से नीचे खींच रही है? हाँ या ना? मैंडेटरी, सबको पोल करना है, नोटा नहीं है, नोटा नॉट अलाउड. हाँ या ना? ये जो रस्सी है बाईं तरफ वाली, पुली से सटी हुई बाईं तरफ वाली जो रस्सी है, वो पुली को टी बल से नीचे खींच रही है क्या? हाँ या ना? ना किसी ने बोला. हाँ, आपने ना बोला. अच्छा, अगर नहीं खींच रही है तो दाहिने वाली रस्सी जो है वो पुली को नीचे खींच रही है क्या टेंशन T से? When we take that P plus T 2T at that time, so that is not equal. ये आप मेरे प्रश्न का जवाब दो. जो लेफ्ट पुली है, यहां से जाएगा क्या? हाँ, ये तो जो लेफ्ट वाली रस्सी है, ये वाली रस्सी, ये इस पुली को नीचे की तरफ डाउनवर्ड T फोर्स से खींच रही है कि नहीं खींच रही है? खींच रही है. हाँ, चलो, ना वाले भी हाँ में आ गए. और कोई बताओ, हाँ या ना? और दाहिनी तरफ वाली जो रस्सी है वो पुली को नीचे खींच रही है कि नहीं? हाँ कि ना? कैसे खींचेगी सर? कैसे खींचेगी? ये फ्रिक्शनलेस पुली है, टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगेगा. फ्रिक्शन जो होता है, अगर फ्रिक्शन न हो तो केवल नॉर्मल फोर्स लगता है, टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगता. और यहां आप देखिए, यहां ये जो रस्सी जहां पुली को टच कर रही है वो टेंजेंशियल है, और ये जो रस्सी पुली को टच कर रही है ये टेंजेंशियल है. अगर फ्रिक्शन नहीं है तो टेंजेंशियल फोर्स कैसे लगाएगी रस्सी पुली के ऊपर? Let me go to the next puzzle. No, but can we say this one? Can we say that let it be T1 and T2? T1 plus T2 is equal to 2T, and that resultant force But why? at the point B is equal to 2T. We say that is T1 plus T2. Is this T1 is the force by the string on the pulley, okay, and T2 is the fine. But if it is frictionless,
you cannot have any force by these vertical strings on the pulley at the point of contact, because there the string is tangential to the pulley. So that's the puzzle. Alright, let's go with this. Now tell me, this is a simple pendulum going from A to B to C and back, where at which point is the angular velocity minimum? At which point the angular velocity is minimum? During this path, A and C are the extreme positions, B is the mean position. During this path, A to B to C to B to A, right? At which point is the angular velocity of this bob minimum? A and C. Point A and C endpoints. A and C endpoints. Very good. Velocity, angular velocity is minimum. Now at A, what is angular velocity? 0. And if omega is minimum, as you said, if omega is minimum, if the angular velocity is minimum at A, that means this dw dt should be 0, calculus. Okay, wait, sir. So, you have all said that, or at least majority, that the angular velocity is minimum at the extreme point A or C, right? And if it is minimum, d omega dt should be 0, calculus. At maximum or minimum, the first derivative is 0. And torque is I alpha, which is I d omega dt, that should be 0. If d omega dt equal to alpha is equal to 0, torque should be 0. Omega is a constant. Omega is a constant. No, it can't be constant. So that means the torque at A is 0. Omega is minimum there. D omega t is dt is 0 there. Alpha is 0 there. Torque is I alpha. So that means the torque is 0. So when the pendulum bob is at extreme point, no torque of gravity. So that's the puzzle. Okay, that's the puzzle. At which point is the angular velocity minimum? If you say that it is minimum at A, or you say that it is minimum at C, then I will say that okay, at these extreme points, d omega dt should be 0, otherwise the calculus will not work. The first derivative should be 0 at maximum and minimum. And if d omega dt is 0, that means angular acceleration is 0, and that means the torque is 0 at A and at C. But you know that it is mg times L sine theta, or L cos theta, L sine theta, right? It is not 0 there. So that's the puzzle. Alright, so go to next. This is very popular here. At B, angular velocity should be minimum, and where it should be maximum? At extreme points, omega is maximum. It's at rest at the end points. It comes to rest. So omega is 0 there. Omega is 0 there. Sir, Vijay Singh sir, कुछ आप कह रहे थे? I was going to say d omega by dt is not 0. Yeah. That is all. But if omega is maximum or minimum? I'm not saying minimum. It is 0. Omega is 0. Yeah, my first question was, sir. People said that they were wrong. Omega is 0. Something just as when you throw the ball up at the topmost point, the velocity is 0, but the acceleration is the same. Correct. That's all. That's Correct. the same, similar thing. Correct, similar thing. But my question is still there. At which point is the angular velocity minimum? A or B or C? What is your name? Huh? Kushin says that. Sir, Venkatesh sir,
अभी आपने बोला जो सब लोग कहते हैं, जो कन्वेंशनली नोन है, जो बड़ों ने कहा, जो सबसे हुआ, उससे डेविएट करो। खुशी इज डूइंग दैट। आप सीरियसली इसको लीजिएगा, इस पजल को सॉल्व करने के लिए। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, राइट? तो ये है ना, ये तो पॉपुलर, वेरी पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन। यू फील तो क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं? इट्स वेरी पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन, सब सारे आईपी के टीचर्स लोग करते होंगे। क्या बोलते हैं? व्हाई इट इज वार्म, व्हाई दैट इज कूल? बताओ। ये तो अपने लोग हैं ना सारे, यहाँ किस बात की शर्म है? एयर एक्सपैंड हो गया ना, एयर एक्सपैंड हो गया। हाँ बताइए। ओके, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेट कर लीजिए, बताइए। हम जब हवा रिलीज करने के लिए हमारा मुंह बड़ा करते हैं, हाँ, तो वेलोसिटी कम होती है इस हिसाब से कि हम मुंह छोटा करते हैं। करेक्ट। अब वेलोसिटी कम है तो जब हवा एम्बिएंट हवा में मिक्स होती है तो इट हैज इनफ टाइम टू कम इनटू से थर्मल इक्विलिब्रियम फॉर एग्जांपल, या गर्म होने के लिए वो टाइम मिलता है। ओके, एंड जो हवा बाहर फास्ट निकल रही है, हाँ, दैट इज स्टिल कोल्ड। करेक्ट, ठीक है। चलो, इन्होंने कुछ बताया है। जो लोग ये डेमोन्स्ट्रेशन करते रहे हैं, आई एम श्योर लोगों ने किया होगा यहाँ पे जो लोग हैं उनमें से, तो आप बताइए क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं। सही गलत हम बाद में चर्चा करेंगे। हाँ, ओके, व्हाट इज सेइंग इज, उनके पास माइक नहीं था तो मैं बता देता हूं कि जब आप छोटा मुंह करके फूंकते हो तो एयर जो है वो एक्सपैंड करती है, एंड एक्सपेंशन के कारण से कूलिंग होती है और वो हवा कूल हो जाती है, राइट? हाँ, करेक्ट। वंडरफुल। तो आपके लिप्स गर्म हो जाते बदलते ना, छोटा मुंह रखो या बड़ा रखो। अंदर के मुंह की हवा का प्रेशर बदल रहा है क्या? नहीं ना। और बाहर की भी हवा का प्रेशर सेम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी सेम है, तो फिर काहे का एक्सपेंशन? सेम प्रेशर पे तो जा रहे हैं। थोड़ा सा फर्क है और वो फर्क इसमें भी है और उसमें भी है। उसमें भी है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पजल। सर स्पीड में चेंज आता है, हवा निकल। हाँ, स्पीड में चेंज आता है। मैडम ने बोला ऐसा करके फूंक कर छोटा फूंक करके करोगे तो ज्यादा स्पीड से निकलेगा, और बड़ा करके करोगे तो कम स्पीड से निकलेगा, बिकॉज बड़ा अपर्चर छोटा अपर्चर। करेक्ट, प्रेशर डिफरेंस सेम है, स्पीड के कारण करीब प्रेशर डिफरेंस सेम है। Leaving the puzzles untold is as good as not knowing it forever. So why don't we discuss it and get it? हाँ, ये दो कारण है उसके, मेरे को केवल 30 मिनट मिले हैं और मैं ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहता हूँ। शिक्षक हूँ ना। दैट इज वन। दूसरा कारण ये है कि अगर आपने देखा होगा रश्मि खलीली की जो बहुत प्यारी सी किताब है, हाँ अभी आते हैं इस पे, बहुत प्यारी सी जो रश्मि खलीली की किताब है जिससे हम लोगों ने पढ़ा था सेकेंड एडिशन, उसमें चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए रहते थे बिफोर गोइंग टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। कुछ क्वेश्चंस दिए रहते थे और उनके उत्तर नहीं दिए होते थे। और यही काम मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में भी किया, क्योंकि मेरी पूरी प्रेरणा जो है वो रश्मि खलीली से आई है। तो उसमें भी आप देखोगे हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस हैं विद द टाइटल क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स, और उसके कहीं उत्तर नहीं दिए गए हैं। वो इसलिए है, रश्मि ने भी वो इसीलिए किया होगा और मैंने भी इसीलिए किया है
कि वो आप देर तक वो प्रॉब्लम आपके दिमाग में रहे, आपके उसके ऊपर आप चिंतन करो, आप मनन करो, क्योंकि आंसर मिल जाने से चिंतन मनन की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो जाती है। अरे आप सोचो ना, आप निकालोगे, आप बहुत कॉम्पिटेंट हो शर्मिष्ठा जी। मुझे आपके गुणवत्ता के ऊपर, आपकी विद्वत्ता के ऊपर, आपकी परिश्रमशीलता के ऊपर पूरा यकीन है, आप जरूर निकाल लोगे। आप तो टाइम लगा दो इसके ऊपर, आप जरूर निकाल, एजेंडा मिल गया इसको केवल। जो अपने मुंह के अंदर का स्लाइवा है और वो है मॉइस्चर है, वो कितना निकला कितना बाहर, और देखो ना चिंतन शुरू हो गया ना। अगर मैंने एक उत्तर दे दिया होता तो सबके दिमाग में वो उत्तर बैठ गया होता, अपने कितने सारे उत्तर आएंगे, चिंतन शुरू हो गया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, अभी है ना, टाइम हो गया, ठीक है, तो हम एक वीडियो आपको दिखा देते हैं और उसका बंद करते हैं। हाँ, ये देखिएगा, ये अभी कल मैंने ये वीडियो बनाया है और गैस स्टोव के ऊपर एक बर्तन रखा है स्टील का और उसमें पानी रखा है, जैसे चाय बनाने के लिए रखते हैं, और वो पानी यहाँ गर्म हो रहा है। मैं आपको बता दूं क्योंकि दूर से शायद दिखेगा नहीं, और आप खींचिएगा जब भी घर पहुंचिएगा ट्रेन से या प्लेन से, तो ये एक्सपेरिमेंट करिएगा, बहुत आसान है, बहुत कम खर्च है इसके अंदर में, थोड़ी सी गैस 10-15 पैसे की शायद खर्च होगी इतना ही खर्च है। स्टोव के ऊपर आप बर्तन रखिएगा, थोड़ा पानी रखिएगा और उसको धीमे पे रखिएगा, गैस को धीमे पे रखिएगा, और आप देखिएगा थोड़ी देर में आपको उसके बॉटम के ऊपर बबल्स नजर आएंगे, छोटे छोटे बबल्स नजर आएंगे, और उस समय में आप उंगली लगाइएगा वहां बॉटम के ऊपर जहां बबल है, आप अंगूठा रख दीजिएगा बबल, जहां से जैसे आपको बबल दिखाई पड़े आप अंगूठा रख दीजिएगा। तो ये इस वीडियो में है, शायद पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा, इसलिए मैं, देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, ये देखिए जहां मुझको बबल दिखते हैं वहीं पे मैं ये लगा देता हूं। अच्छा ओके, सॉरी, दो तरफ से ऑपरेशन। यहां देखिएगा जहां मुझे बबल दिख रहे हैं मैं आराम से उंगली रख रहा हूं, बड़े छोटे छोटे बबल है बॉटम पे, जहां ये देखिए मुझे दिखा वहां मैंने अंगूठा लगाया है। ओके, और ये इसलिए आपको दिखा रहा हूं, मैं थोड़ा और गर्म हो चुका है, ज्यादा बबल्स बन रहे हैं, इस समय मैं अंगूठा लगा रहा हूं। ये मैंने इसलिए दिखाया है कि उसकी तली के ऊपर मैं आराम से अंगूठा रखता हूं या उंगली रखता हूं, मेरा हाथ नहीं जलता है। यानी उसका जो बॉटम है इसका, उसका टेम्परेचर कितना रहा होगा, अगर मैं आराम से रख रहा हूं अंगूठा, कितना रहा होगा, 70 को तो नहीं रख पाओगे भैया, 70 को आप रखोगे तो फट से हटा लोगे। अब मैं अंगूठा रख रहा हूं, वो डायरेक्ट हीट पड़े चाहे इनडायरेक्ट, मैं तो सटा दिया ना। देखो, थर्मामीटर का इंट्रोडक्शन देने के पहले हीट और टेम्परेचर का जब चैप्टर शुरू करते हैं तो हम कहते हैं कि हम छू के बताते हैं कि ये गर्म है, ये ठंडा है, तो ये हमारा पहला थर्मामीटर होता है। तो अगर आप आराम से रख पा रहे हो तो 50 से ज्यादा तो होगा ही नहीं, 45 होगा, 48 होगा, 86 होगा, बबल्स वहीं पर बनना शुरू हो जाते हैं। तो पजल यही है कि 40 डिग्री पर बबल कैसे बनते हैं और 45 डिग्री पर बबल कैसे बनते हैं। ये एयर का, पानी का स्टीम जो, इट्स नॉट इवापोरेशन, इवापोरेशन सरफेस पे होता है, वो हर एक टेम्परेचर पर होता है, लेकिन मैं सरफेस पे नहीं हूं, मैं बॉटम पर हूं। ये वाटर का स्टीम 45-46 डिग्री के ऊपर कैसे बन रहा है, ये है मेरा पजल। थैंक यू वेरी मच। Lecture by Professor S. C. Verma was full of questions. So, no more further. थैंक यू सर, आपने मेरे को बता दिया। मैं किसी का जवाब देने की जरूरत नहीं। थैंक यू An interactive lecture, and it is always said that a good teacher confuses them all, and because of the confusion, it becomes
thought-provoking. You start thinking of the physics and all the phenomena involved.